Transforming Journey of Mind. And in the last episode, also, we had discussed certain aspects of that book itself. And for today's episode, we are discussing a very, very interesting topic and a mysterious one as well. And the topic's name is dreams. Very common phenomenon that everybody we experience in our day-to-day lives. However, few of us are actually able to dig deeper into the deeper meanings which the dreams hold. And this is the core purpose of this particular episode of podcast. Length and breadth of the book which you have discussed, the chapter of dreams. So I would like to know that what motivated you to actually get into this depth with respect to this particular topic of dreams. What were those things which motivated you to study such things? Nice. See, my understanding is that the again coming back to the same point, the mind, body, intellect system, जिसके बारे में हम जितना ओपिनियन बना के रखे हैं, whatever understanding we have developed, actually in true essence this is something much more than this. तो ये जो hypothesis है, this is always on in me somehow because of different kind of experiences, where it repeatedly conveys me that whatever we are doing in waking state, that is fine, but things are always happening because the experience of life is 24/7. But somehow we believe that when we are awake, that time we are doing so many things, Right. and by the time we go to sleep, and then again all those things. So if you see from that perspective, out of 100 years, almost 33 years we remain in the state of nothingness. Right. So if you do not get into this state of nothingness, then how do we understand the entire thing? Entire thing we will never be able to do complete analysis unless we dig into this part. True. Because many of my friends, they say, "Nee, we'll make some kind of evidence-based understanding and all." I say, "Yeah, whatever evidence you make, after making that evidence, we go for sleep." Right. So there is a sense of discontinuity in our understanding process. So कैसे करके हम तो ड्रीम मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट इसलिए लगी ड्रीम मुझे ये पता नहीं ऐसा मुझे लगता था कि ये 24 hour into 7 वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें ही कोई चीज़ें हमें समझना है. अदरवाइज स्लीप और ड्रीम को अगर हम डीपली नहीं समझेंगे तो एक लार्जर चंक हमारा अंडरस्टैंडिंग से छूट जाता है. सो यहाँ पे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा. यू मेड अ वेरी ब्यूटिफुल पॉइंट दैट 8 hours वी आर स्लीपिंग इन अ डे विच मीन्स एवरेजिंग normal human life of 90 years, 30 years we are sleeping. So are you trying to make a point that जो बाकी के 16 घंटे और 2/3 of our lives जो waking reality है, so are you getting into the point that even what we see in dreams, in our dreams, is also an extended part of reality itself? हाँ नहीं देखो बड़ा उसमें ही तो बड़ा मैंने माई सब्जेक्ट इज स्टिल इट इज एक्सप्लोरिंग काइंड ऑफ थिंग. काफ़ी उसमें हाइपोथेसिस हैं और मैं इस टॉपिक को पकड़ा ही इसलिए हूँ. आई वांट टू टॉक ऑन दिस टॉपिक स्पेशली जनरेटिंग इंटरेस्ट अमॉन्ग द न्यू जनरेशंस बिकॉज दिस टॉपिक इज टू बी एक्सप्लोर्ड इन द टाइम टू कम. तभी मैनकाइंड का जो मिस्ट्री रिजॉल्व होगा. तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग ये कि वेकिंग टाइम में जैसे हमारी सेंसिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स काम करती है, माई ईयर आइज एंड ऑल दोस थिंग, ड्रीम स्टेट में द कॉन्शियसनेस इट वर्क्स. सो द ड्रीम बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ द कॉन्शियसनेस व्हेन दिस सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर एट स्लीप. ठीक है, उनके कोई रिएक्शंस नहीं है, वो चुपचाप अपने लेट गए आराम कर रहे हैं. उस समय जो मूवमेंट होती है, उस समय जो अंडरस्टैंडिंग होती है, सब कुछ वैसे ही होता है जैसे वेकिंग स्टेट में होता है. समझ रहे हैं आप? बट इस समय करने वाला जो चीज है वो दैट इज प्योरली ड्रिवन बाय द कॉन्शियसनेस. सो दैट होल्ड्स द एंटायर की. सो अगर आप कॉन्शियसनेस को देखेंगे तो वो भी एग्जैक्टली लाइफ एक्सपीरियंस करता है जैसे हमारे सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं. बट कॉन्शियसनेस तो नॉर्मल टाइम में भी करता है. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग व्हेन द ड्रीम स्लीप स्टेट, व्हेन जब सब कुछ क्लासरूम में टीचर चला जाता है तो वो रूम में किस टाइप की एक टिपिकल डिसिप्लिन होती है, उसमें भी लर्निंग होती है, उसमें भी काफ़ी नॉलेज एक्सचेंज होते हैं. ठीक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रैंडमनेस भी आती है, जो आप सोचते हैं वो दिखता है, ऑल दोस थिंग. दैट इज अ वेरी सुपरफिशियल लेवल. बट एट डीपर लेवल्स इट इटसेल्फ इज अ न्यू डोमेन, वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन. Yeah, truly agreed. So, like to help our viewers understand this complex phenomenon in a very easier way,
So, and before we actually switch gears to the higher dimensions of dreams, I would like to know how will you define dream and what is your understanding of the term dreams? देखो ड्रीम का मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ड्रीम इज समथिंग लाइक वेकिंग स्टेट ओनली, बट इन दिस केस इट्स अ टोटल प्ले बाय द कॉन्शियसनेस. ओके. और कॉन्शियसनेस के साथ में ये बड़ी और एक दूसरी उसमें हाइपोथेसिस ये भी है कि कॉन्शियसनेस द मोमेंट इट इज इन दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस एम्बियंट सिस्टम, so it functions like this, but in dream state actually this the limits of the body and the size and shape become irrelevant. In that condition you experience the dream. Okay. And the next question would be that since you have drawn so much interest in this particular field, आपके क्या experiences रहे हैं? 100% आपके कुछ ऐसे experiences रहे होंगे जिसने आपको मोटिवेट किया होगा कि एक्चुअली इसके बारे में और शोध किया जाए और रिसर्च किया जाए. एक्चुअली सो आवर व्यूअर्स वुड लाइक टू नो कि आपका ड्रीम्स के साथ रिलेशनशिप एंड आपका पर्सनल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू द ड्रीम्स व्हिच शेप्ड योर ओवरऑल लिटरेचर व्हिच यू हैव रिटन इन द बुक. देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, सही पॉइंट पूछा. एक्चुअली यहीं से बात मेरी स्टार्ट होती है. बाकी लर्निंग में हम क्या करते हैं ना, पहले हम सीखते हैं, नॉलेज आता है, यू लर्न, यू प्रैक्टिस, यू डेवलप नॉलेज, देन यू एक्सपीरियंस दैट. यहाँ ना जस्ट उल्टा होता है. आई मीन जो मेरे साथ हुआ है, आई यूज्ड टू एक्सपीरियंस मेनी टाइम मेरी न्यू काइंड ऑफ ड्रीम्स. काफ़ी छोटे में, मे बी अभी तो 40 years प्लस हो गए ड्रीम ने. मैंने सो ड्रीम मुझे इट इज़ नॉट 1 or 2 year 5 years जर्नी, इट्स ऑलमोस्ट 30-40 years ऑफ जर्नी एंड वैलिडेशन ऑफ दोज थिंग वट एवर आई हैव सीन. उसको मैंने कोरिलेट किया, अंडरस्टैंड किया. छोटे में तो समझ भी नहीं आता था क्या हो रहा है, बट हाँ ये लगता था कि ये क्या हो गया, समथिंग लाइक दैट. सो ड्रीम के साथ में क्या है कि मेरा इसके ऊपर एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हुआ है, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक यार दिस इज समथिंग एवरीबॉडी मस्ट बी विटनेसिंग इन देयर ओन लाइफ्स. लेकिन उसको हम डॉक्यूमेंट नहीं करते. तो मुझे ना बहुत लोगों से मैंने पूछा, काफ़ी लोगों से पूछा है क्या है, तो एवरीवेयर आई गेट दैट आइडिया दैट नहीं, ड्रीम तो वही है जो वेकिंग स्टेट में जो आपके जो मीन्स वेकिंग स्टेट्स का जो पार्ट जो अनफुलफिल्ड रहा है वो ड्रीम में आता है, एंड ऑल दोज थिंग, दैट्स फाइन. सम काइंड ऑफ रैंडमनेस, समथिंग विल कम, नो, दोज काइंड ऑफ थिंग व्हिच कम्स आउट ऑफ योर इमेजिनेशन, जिसके बारे में आपने सोचा एंड ऑल दोज थिंग. लेकिन इन माई केस आई यूज्ड टू, ठीक है ये भी आते थे, बट सम केसेस आई यूज्ड टू सी वेरी ओल्ड काइंड ऑफ ड्रीम्स और वेरी एडवांस फॉरवर्ड लुकिंग ड्रीम्स अनरिलेटेड टू व्हाटएवर यू हैड एक्सपीरियंस. कभी बात ही नहीं हुई उसके बारे में, मालूम ही नहीं है क्या चीज है. तो जब ऐसी चीजें आने लगी तभी मेरे को इसके ऊपर पहला स्टार्ट ही वहीं से हुआ कि जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, जिसके बारे में मैं जानता नहीं, जिसको कभी देखा नहीं, कुछ भी नहीं पता है, हाउ सडनली आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग अबाउट दोज ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स और फेनोमेना और इवेंट्स. अचानक से कैसे आते, क्यों आते हैं. तो फिर उसने मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस चलते. इट इज अ सेल्फ, यू कैन से एक टाइप का सेल्फ हाइपोथेसिस जो चल रहा था, काफी सालों का है ये, एक दो दिन का नहीं. अर्लियर आई यूज्ड टू राइट इन द बुक, नेक्स्ट डे उठ के ना मैं लिख के अपने माँ को देता था कि देखो आज मैंने ये देखा, इसका मतलब क्या है. आई यूज्ड टू पोस्ट हर लेटर इन दोज टाइम्स. she will see through those letters and then she will reply इसका मतलब ये होता है and all those things. So ये काफी सालों से चल रहा था. ये चलते चलते क्या होता है, कई ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं when you actually जो होना था वो आपने देख लिया, फिर वो exactly हुआ. अच्छा, वो होने का भी सीक्वेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है. It is not that suddenly something will happen. No. Exactly, somebody will call you, give a phone will ring, they will come and tell you so and so news, and you become very happy. Suppose this is something you saw. So then the moment phone call comes, then suddenly your mind will say, okay, now it is start unfolding. And strangely, it goes exactly in the same way, many times. माने इतना accurate होता है, I was totally surprised. जिस तरीके से हम घटनाओं को देखते हैं, वो जब अनफोल्ड होना चालू होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि ऐसे कैसे हो सकता है. तो उसमें मुझे एक चीज़ लगा कि अगर इफ़ थिंग्स कैन हैपन लाइक दिस, फिर तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट हम लोग मैंने एग्जिस्टेंस का बहुत बड़ा डिज़ाइन और बहुत बड़ा जो मिस्ट्री है, इट इज़ देयर इन दिस डोमेन. वाई वी एक्सपीरियंस ड्रीम, बिकॉज इसको अभी तक हमने बहुत लाइटली लिया, हमने इसको अभी तक सीरियसली नहीं लिया इस टॉपिक को. लेकिन मुझे लगता है मैंने इतने साल के देखने के बाद, दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल दिस पॉइंट वेरी विथ ऑल काइंड ऑफ यू कैन से बिलीफ एंड स्ट्रांगनेस, दैट इसे हमें बहुत एक्सप्लोर करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेंज टॉपिक है. लेकिन
एकदम ट्रूथफुल है ये, इसमें कोई भी रैंडमनेस